Hello, everyone, and welcome to another inspiring conversation. I say it inspiring because today I have with me Karan Balmik, a founder and a director of Northern Institute of Hospitality Arts, Darjeeling. So a little bit about Karan's journey. Karan's journey is inspiring. It's a transition from a professional chef to an educator, entrepreneur, and a mentor. Okay, so his passion for shaping young talent led him to establish NIHA, that is Northern Institute of Hospitality and Arts in Darjeeling, where he focused on skill-based education, practical learning, and creating career opportunities in hospitality. So, Karan, beyond his education, is also actively involved in community development initiatives and is also an author of a book, The Indian Table, which we will speak little in detail as we take him through the podcast. It's a book, a cookbook celebrating Indian cuisine and culture. So, today we will explore his journey, his learning, his vision for empowering the next generation of hospitality professionals. So, Karan, welcome. Welcome to our podcast. And it's really wonderful to have you today. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for inviting me. It's a privilege to be here and share my experience through this podcast. I hope with this podcast, many of the students and the struggling entrepreneurs should get encouraged through this. Thank you once again, sir, ma'am. Welcome, Karan, and it's good to see you here. Let me ask you very straight, coming to the question, let me ask you very straight that many people actually continue their professional careers, but very few decides actually to build an institution. What was your one moment that made you to say that I want to start an IHA NIHA? It was it was a turning point for me, like for when I thought of starting an institute. जब मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा था, लाइक मैं बहुत ऐसा चीज करूंगा स्टूडेंट्स के लिए, मैंने सोच के लाया था. फॉर एग्जांपल, मैं पहले इससे पहले मैं आई वाज वर्किंग एज एन लेक्चरर इन आईएचएम. वहां पे मैंने देखा कि ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो. बट स्टूडेंट्स का लर्निंग कुछ है ही नहीं उसमें. और जब लर्निंग कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स जब प्लेसमेंट के लिए जाएंगे उनको प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा. इफ यू सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल. इसी के वजह से आई थॉट ऑफ नहीं, अपना एक खुद का इंस्टीट्यूट होना चाहिए. एंड फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, अपार्ट फ्रॉम theoretical knowledge, but practical and skill based education should be taught there. इसी के लिए मैंने ये Interesting. Yeah. Let me add another question. Just came in my mind, Karan. Is that as a chef, like I also worked in hotel industry for quite a long time. तो जो शेफ होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं. And so they always think creatively, means कि कुछ क्रिएट नया कुछ क्रिएट करना है. और एक जो एजुकेटर होता है वो always think about people, students, learners. But you are also a founder. So what exactly is the founder always thinks about sustainability कि कैसे business जो है so sustain रहे. So you have got three things to do. How was your own transformation from chef to entrepreneur? If you see, sir, it's quite challenging for me because जब आप एक शेफ हो तो we have to only think about the operations, only काम के बारे में सोचते हैं. When we are a chef, we think about customer service only. But when I became an educator, then I have to think for the students, for their career and for their growth. But once I become an entrepreneur, then I have to think for the community and the society as well. Because we are giving the service, educational service to the society. It was a quite challenging time because I was a lack of skills, but through this journey, I learned so many skills. New skill has been developed, and बहुत कुछ इसी journey में sir challenges भी आए, struggle आया.
प्रॉब्लम भी आए, बट इसी के थ्रू से आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, यहीं से मैंने सीखा। एंड यही सर, यही इंस्टीट्यूट मेरे को इनकरेज करता है कि आगे और जाके थोड़ा कुछ और स्टैब्लिश करे, थोड़ा जाके और आगे बढ़े। हम्म। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए, मतलब ये कहाँ पे है इंस्टीट्यूट, और सिर्फ होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन है, या फिर आप किसी और के साथ में जुड़े हो, या फिर प्लेसमेंट कैसे होता है? थोड़ा ज्यादा ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए आप? जी जी, बेसिकली इंस्टीट्यूट कौशन दार्जिलिंग में हम लोग का स्टैब्लिश है। हम्म। इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी आर्ट्स। हम्म। सो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको निया बोलते हैं, NIHA। हम्म। तो बेसिकली ये कोर्स बेसिकली अभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के लिए है, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपरली। और हम लोग इसमें बेसिकली अभी 3 कोर्स हम लोग अभी कंप्लीट ऑफर कर रहे हैं, जिसमें वन डिप्लोमा इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो 1.5 ईयर्स का है। उसके बाद हम लोग के पास 2 सर्टिफिकेट कोर्स है, जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी एंड पेटिसरी एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन बारटेंडिंग एंड मिक्सोलॉजी। हम बरिस्टा का भी कोर्स उसमें डाल देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ज्यादातर इंटरेस्टेड है। सो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास ये 3 कोर्सेस है, बट इन फ्यूचर आई थिंक वी कैन ऐड मोर कोर्सेस। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का कोर्स भी आगे बढ़ता जाएगा, इसमें टाइम करते हैं हम लोग। और फिलहाल के लिए हमारे साथ अभी इसमें संजीव सर ऑफिस सिग्मा UK बेस्ड CTP कोर्स है, जो 6 महीने का कोर्स है। उसके साथ हम लोग ने एफिलिएशन किया है ऑफिस सिग्मा के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम इंडिया में हम लोग ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के साथ भी एफिलिएशन किया है। सो हम लोग को सर्टिफिकेट में थोड़ा हम लोग को आसानी हो जाती है इसलिए। सो अ, दो हम लोग के पास एफिलिएशन है फिलहाल। तो दो कोलैबोरेशन एंड देन सर्टिफिकेशन कोर्स भी है आपके पास, ठीक है? यस। So generally students after 10th or 12th, or after 12th they get admission to this course. How is it? After 12th. After 12th, okay. And this is it's only people for Darjeeling. Now if somebody else has to come, अगर कोई दिल्ली से ये कोर्स आना करना चाहता है, तो उनको भी मतलब सुविधा है कि वो लोग आके ये कोर्स आपके यहाँ करें, या फिर इट्स ओनली नाउ फॉर द टेरिटरी दैट यू आर लिविंग इन? एक्चुअली मैम ये फिलहाल अभी यहीं की टेरिटरी के लिए हम लोग ने फिलहाल ओपन किया है, क्योंकि अभी देखेंगे बाद में लाइक स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली कोलकाता, उनके लिए ट्रैवल करने में फिर उनको हॉस्टल PG प्रोवाइड करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वी आर अ वेरी स्मॉल कैंपस राइट नाउ। इसीलिए हम लोग ने लोकली शुरू किया है। बाद में इन फ्यूचर हम लोग ट्राई करेंगे आफ्टर 1 or 2 ईयर एक्सपैंड करने के लिए, सो वी कैन गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम बैंगलोर, दिल्ली एंड चेन्नई। Okay. So let me ask one thing, that in today's time, uh, what is my research says that hotel management actually losing out many students, like not many people are actually enrolling. Yes, sir. And however, Government of India, Mrs. Sitaraman actually announced in the budget and did mention that there is a gap between academia and industry. Yes, sir. तो इस पर आपका क्या विचार है, करण, कि जो मिसेस सीतारामन बोल रही हैं और आपका स्टूडेंट्स भी एनरोलमेंट कम हो रहा है, एंड एट दिस पॉइंट यू हैव ओपन एन इंस्टीट्यूट जो कि इतने Yes, sir. चैलेंजेस के बीच में, हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी सस्टेन, एंड व्हाट इज योर आउटलुक ऑन दिस थिंग? Actually, sir, I have faced this problem. मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, बिकॉज जब मैं IHM में टीच करता था, वी हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एडमिशन ज्यादा नहीं आते थे, बिकॉज दे जस्ट वांट टू गो फॉर अदर कोर्सेज मोस्ट। तो मैंने लाइक ज्यादातर मैंने सर्वे किया स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उन लोग को शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स या 1.5 ईयर का कोर्स करें, फिर उनके बाद वो लोग अब्रॉड जाके काम करना शुरू करें। सो इसी बेसिस में मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसमें ओनली 6 मंथ्स कोर्स रहे वो, और डिप्लोमा कोर्स रहे। तो स्टूडेंट्स आए, एडमिशन किया, कोर्स के बारे में पढ़ा, ट्रेनिंग किया 6 महीने में, और उनको 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग उसको उनको अब्रॉड भी भेज। सो ये बेसिस हम लोग ने रखा इंस्टीट्यूट। आई थिंक हम लोग सर्वाइव भी कर लेंगे। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में हम लोग सस्टेन भी हो जाएंगे।
but I think we'll get a good number of students. Just to add this, because when you're talking about when the government is saying there is a gap between academia and industry, and there are many surveys also suggest that there is when I was talking with hoteliers and I was talking with the students as well, Right. one is very clearly people are saying that students are not job ready. What is your say into it? How you are going to bridge this gap? Means no, तो आपका इंस्टीट्यूट भी वैसा ही है जो पढ़ाता है, तो what is your difference? Means how can you justify that people passing out from your college will be better off than anybody else? So we are different from the other institute because देखे जाए तो अभी काफी सारे इंस्टीट्यूट में है स्टूडेंट्स लोग दे अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बट क्या कर लेते हैं कि उनको जॉब नहीं मिलता है, लैक ऑफ स्किल्स, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट में स्किल्स प्रोवाइड नहीं करते, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज. बट in our institute what we provide is skill plus theoretical knowledge and industry experience, क्योंकि जब तक उन लोग को स्किल्स और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तब तक उनको आगे जाके काम में भी मदद नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई इन आवर इंस्टीट्यूट वी गिव देम स्किल्स एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो जॉब रेडी एक कोर्स है सर. क्योंकि हम लोग का मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ. वी जस्ट स्टार्टेड इट न्यू. We just started a cafe. We are just starting a cafe now. That cafe is going to be run fully by these students. So हम लोग ने ये cafe शुरू किया है कि because students को entrepreneurship skills मिले from the course itself. क्योंकि ज्यादातर क्या, yes sir, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं कि आफ्टर पास आउट कोर्स खत्म करने के बाद जॉब, वो लोग जॉब करते हैं, जॉब के बाद वो लोग सब सीखते हैं. बट हम लोग ने ऐसा नहीं किया. We just established a cafe. वो कैफे में अपना खुद का बेकरी प्रोडक्ट्स भी लाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट सेल करेंगे, कॉफी वगैरह सेल करेंगे, मिल्क शेक वगैरह सेल करेंगे. सो ये उनको एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वहां से मिल जाएगा एंड कस्टमर एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा. सो एक हम लोग उनको रियल एक्सपीरियंस दें. सो इसकी वजह से आई थिंक उनको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको जॉब भी जल्दी. That's a very good idea actually, Karan, and I'm really impressive. Yeah. Impressive, yes. And I'm impressed, because उस उम्र में अगर आप बच्चों को कैसे as an entrepreneur to stand up, handle objections, rejections, failure, and mental stability, and of course at the same time having that integrity and honesty is also quite important. तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा आपका आइडिया जो कि आपने स्टूडेंट्स को केफ बना के दिया. इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. सो करण, थोड़ा ज्यादा जानकारी ये बुक का कैसे आपको शौक चढ़ा, मतलब आपने क्यों बुक लिखा, मतलब इतना सारा एक ही साथ में करना इज नॉट इजी, बुक लिखना आल्सो इज नॉट इजी. तो आपने कैसे इसको एक बुक का मतलब ये शौक कैसे आ गया आपको, हाउ डिड यू राइट दिस? एक्चुअली जब मैं आईएचएम में पढ़ा रहा था तब मैम मेरे पास मैं इंडियन कुजीन में पढ़ाता था तब. तो what I feel is इंडियन कुजीन का बहुत सारे बुक्स हैं, बट कोई भी कुजीन के लिए प्रैक्टिकल करने जाओ तो वी हैव टू रिफर डिफरेंट बुक्स, और ऐसे करते कम से कम 10-15 बुक रिफर करने पड़ते. तो मैंने क्या सोचा क्यों ना 10-15 बुक को एक बुक में लेके आए. I just thought, it was just a thought that time, just सोचा था मैंने. बट आई ट्राइड आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद मैंने ट्राई किया, कोशिश किया सब बुक्स को, जितने भी रेसिपीज हैं, जो फॉरगॉटन रेसिपीज हैं, वो सब लेके आने के लिए, और नॉट फ्रॉम ओनली 4 पार्ट ऑफ इंडिया बट ऑल फ्रॉम 28 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट से भी लेके आके सारे कुजीन्स उसमें ऐड अप किए हैं. इवन द फेस्टिवल कुजीन्स ऐड किए हुए हैं. जो रेसिपीज है नहीं फिलहाल, जो मतलब फॉरगॉटन रेसिपीज है, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है. और वो भी नहीं, उसके बाद मैंने अपना खुद का सिग्नेचर डिशेस मैंने जो बनाए हैं 10 to 12 सिग्नेचर डिशेस, वो भी इस बुक में एडेड है. और ये बुक इंडियन टेबल है, ये आपको एक जर्नी के बारे में याद दिलाएगा, पूरा इंडियन कल्चर के बारे में याद दिलाएगा मैम. इसमें नॉर्थ से लेके ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ एवरी पार्ट इस बुक में आपको मिलेगा. Excellent. Nice. Excellent. Very good. So, just to ask one question, I'm just coming back to Northern Institute actually. So, if any young students from a small town listening this today and thinking of building his own dream or successful career within hospitality, what would be your message to them?
लोकली और पैन इंडिया, जो भी, जिसको भी। माय सिंपल मैसेज इज सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं खाली होटल में जॉब मिलेगा और सर्विस करेंगे, हम्म। आपका आवाज ब्रेक कुकिंग हो गया करेंगे, है। बट ये सब नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक, हेलो एम आई ऑडिबल सर, या Yes. या या एम आई ऑडिबल? Yeah. यस यस। Yes. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत वास्ट इंडस्ट्री है सर। स्टूडेंट्स को खाली लगता है कि ओनली होटल में काम करेंगे, कुकिंग वगैरह करेंगे, सर्विस करेंगे, बस उसी में सीमित है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक ग्लोबल करियर है जिसमें एयरलाइंस, क्रूज, आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, डिजिटल सॉरी इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब भी इसमें आते हैं। तो स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्मॉल टाउन से हैं या बिगर टाउन जहाँ पे भी है, उनको ये सब के बारे में पता होना चाहिए, एंड दे शुड गेट द राइट प्लेटफॉर्म टू गेट दिस थिंग्स। एंड दिस इज व्हाट वी टीच इन आवर इंस्टीट्यूट आल्सो। जो स्टूडेंट्स हैं, खाली होटल में करियर नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम होटल वी हैव इन, even students can apply for government service also in in railways also through hotel management course, ये सब या इसमें या भी। ट्रू। Oh, I was not aware. अच्छा. समथिंग तो लाइक आपका शॉपिंग मॉल हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, no, all those right, areas, hospitals, even hospitals or call centers, anywhere where the customer service are, yes sir, technically. right, Uh, very good. Any service Yeah, industry. Any service any industry. service. yes, Yeah, yeah. Even banks. Yeah, banks also, all yeah. service provided industry sir, जहाँ Mm. पे भी है। Mm. Yeah. Yes, Seema, you want to So, ask some questions? yeah, again, a little bit of uh, beyond education, आपने बहुत social service भी किया है. So, Mhm. what drives you the passion towards community development? कम्युनिटी डेवलपमेंट में मैम एक ही चीज आता है, वो है एजुकेशन। बिकॉज व्हाट आई फील, the main reason of starting this institute was also a based one example of community service, because in the small towns most of the students हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो उनके लिए हम लोग ने एक सुविधा बनाया है जो अ, कम फीस में भी एक प्रॉपर एजुकेशन दे सके, वो भी एक पार्ट ऑफ आपका कम्युनिटी सर्विस। एंड उसमें स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस फैमिली को भी एक बेनिफिट मिलेगा। और देखा जाए, जब एक स्टूडेंट्स जब एक स्टूडेंट एजुकेशन लेता है, लाइक whenever he gets an education in the education, his whole family is dependent on him, but they don't get the proper way to get the right education. आजकल देखेंगे बहुत सारे एजुकेशन इंडस्ट्रीज है जो फाइट करते हैं फॉर द एडमिशंस के लिए, इधर उधर के लिए, बट फीस के लिए दे नेवर गिव एनी स्कॉलरशिप्स, Yeah. और ज्यादा फीस में कोई रिडक्शन नहीं है। बट वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, वी गिव रिडक्शन इन द फीस एंड वी सी द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड उनको हम लोग हेल्प भी करें। ये एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी सर्विस था जो हम लोग ने इंस्टीट्यूट के अच्छा. थ्रू से शुरू किया था। उससे पहले मैं ये रोटरी इंटरनेशनल में एक मेंबर था, तो वहाँ से भी हम लोग कम्युनिटी सर्विस करते थे, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड ऑल अदर रिलेटेड। Okay. Very good. And so now we are coming to an end of the podcast. So what is the last message you want to give to all the learners or students or anyone of hotel management or hotel management professionals? क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट्स, सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, स्मॉल Mhm. स्टेप्स मैटर, वी Mhm. जस्ट हैव टू बी focused on our goal or keep doing hard work, and maybe one day we will get successful what we want to achieve. That's all my message to the students sir. यही मैंने अपने लाइफ में अपनाया, एंड यही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एंड Excellent. अपने पॉडकास्ट के थ्रू से जनता को भी यही बोलना चाहिए। Thank you. Thank you very much. So thank you, Karan, थैंक यू सो मच। and wishing you lot of wishes, थैंक abundance, courage, and a lot of strength to be an entrepreneur as a founder and director of the National Institute of Hospitality Arts at Darjeeling. And अगर भगवान ने इच्छा किया तो definitely we will also would love to visit your institute someday.
the beautiful city Sure, sir. and your dream of this institute. And through this podcast, I would also want to tell to all the students, do visit the website of the college, have a look at their syllabus, and do connect with Karan for more details. And look at all the certification courses that have been associated with this institute. So thank you, Karan. Thank you so much for being on our podcast. Thank Thank you. you very much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.